Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part third of the previous video, that is a crisis intervention. The contents to be covered today are crisis, its introduction and definition, characteristics of crisis, and phases of crisis. Now first of all, crisis introduction. Basically अगर हम crisis की बात करेंगे कि होता क्या है, if we go in our daily everyday life, this stressful situation is a part of our daily life in one way or the another, and in any stressful situation, it can precipitate a crisis, a sort of emergency, right? And crisis result is उससे क्या होता है, क्राइसिस से एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है between the individual and his environment, or between his internal and external environment, or within the individual एक disequilibrium create होता है, जिसका जो बहुत सारे individuals को बहुत difficult लगता है, and many of the individuals they require definitely some assistance to recover through this crisis. So जब crisis arise होगा तो crisis intervention हम करते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम स्किल्स डेवलप करवाते हैं इंडिविजुअल में जो कि डिमिनिश हुई होती है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन या एंजाइटी की वजह से, तो वो उसको एक असिस्टेंस चाहिए होता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, एंटायर क्राइसिस पीरियड. क्योंकि what happens, sometimes the individual may lose their self esteem और उनकी ग्रोथ में वो हिंडर कर सकता है ये क्राइसिस, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो इसीलिए उनको क्राइसिस इंटरवेंशन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. दैट इज़ वाई द क्राइसिस एंड इट्स इंटरवेंशंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल लाइफ. नाउ द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे क्राइसिस होता क्या है, सो आई कैन कॉल इट, नॉट मी, इट इज़ गिवन बाय लेगरक्वेस्ट in 2006 probably, and it is defined as a certain event in one's life that will disturb the homeostasis, as I told you already. जो एक disequilibrium create होता है, कुछ भी event हो जाएगा individual की life में externally, तो it will create a disturb, because homeostasis, it is a balance. You have already gone through, or you may be knowing, balance between the individual's internal and external environment, or within the individual's internal environments. And during these disturbance, there occurs some of the disturbance, disequilibrium, and which the usual coping mechanisms cannot resolve that problem. So it needs the external interference for the problem solving. That is called as this crisis intervention. नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसा होता है ये बेसिकली क्राइसिस. अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, एंड दे कैन बी विविड एज एन अजप्शन, ठीक है ना, एज अ टेंटेटिव गेस जो हम कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, अपॉन विच द कंसेप्ट ऑफ द क्राइसिस इज़ बेस्ड. बेसिकली कैप्लान ने ही दिए थे ये क्राइसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें पहले ही है क्राइसिस ऑकर्स इन ऑल इंडिविजुअल्स. यस, इन ऑल इंडिविजुअल्स, ये नहीं हम कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल है जिसको कभी क्राइसिस नहीं हुआ है. नो, a stressful event has occurred in everybody's life which has disturbed his hemostatic mechanisms. And definitely पहला characteristic यही है कि crisis occurs in all individuals at one time or the other. Some may be perceiving it at this stage, or in different stages of their life, and it is not necessary that कि ये crisis हम equate करेंगे with any psychopathology, कि इसको कोई psychological disease है, कोई mental disturbance है, उसी की वजह से crisis होता है. No, it is not linked to that. The second characteristics are the crises are predicted. Sometimes we can predict the crisis, because maybe sometimes
some specific identifiable events occur in one's life, and an individual predicts that कि ये वाला individual yes definitely ये crisis में जाएगा या होने वाला है इसको ये वाला crisis, so it can be very much predicted. Next is the crisis are personal by nature. अगर मैं कहूँगी what in the sense it considers as personal, because something crisis situation मेरे लिए एक हो सकती है, दूसरे के लिए वो crisis नहीं हो सकता है. You know, if I feel something is crisis for me, is something this stressful event for me and I cannot cope with this stressful event, but for other person वो उसको lightly ले सकता है and he can easily handle that. So it is very much personal. What is a crisis for me may not be crisis for you people. Next is crises are acute. They are very much acute and chronic, and they can be resolved in one way or another within a brief period of time, जिसको हम crisis intervention देने के बाद ये crisis resolve कर सकते हैं. And crisis cannot contains the potential for psychological growth. Crisis crisis situation it will contains the potential for psychological growth or deterioration. या तो psychological इस crisis की वजह से psychological growth हो जाएगी या deterioration हो जाएगी. ठीक है, if he will manage to handle it तो obviously psychological growth हो जाएगी, and if he is not capable तो deterioration हो जाएगी. So it contains both the potentials of growing individual psychologically or deteriorating individual psychologically. And अगर हम बात करेंगे तो individuals जो इस crisis में होते हैं, they feel very much helpless to change, and उनको लगता है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है टू डील विद दीज स्ट्रेसर्स, एंड द लेवल ऑफ एंजाइटी इतने हद तक पहुंच जाते हैं कि उनका लाइफस्टाइल नॉन फंक्शनल बन जाता है, थॉट्स उनको ऑब्सेशनल आ जाते हैं, और उनका सारा बिहेवियर जो है इट इज़ ड्रैग्ड कि वो रिलीव करे वो एंजाइटी जो उनको एक्सपीरियंस हो रही है, और उनकी जो फीलिंग्स है वो ओवरवेलमिंग होती है, जिसकी वजह से नॉट ओनली ही साइकोलॉजिकली इफेक्टेड बट ऑल्सो फिजिकली ऑल्सो ही इज़ इफेक्टेड. लेकिन बहुत बार क्या हुआ है इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड इन वी कैन से इन मच ऑफ द कल्चर्स, इस क्राइसिस को व्यू किया जाता है एज अ टाइम फॉर मूवमेंट एंड ग्रोथ. वो नहीं लेते हैं इसको एज अ गलत तरीके से एज डिटोरिएटिंग फैक्टर. नो, वो बोलते हैं क्राइसिस हुआ उसकी वजह से ग्रोथ हो जाएगी. वो एक वो उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक डाल देता है कि ये डेंजर भी है मगर ये अपॉर्चुनिटी भी होती है, और एक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ होती है जिसमें मच ऑफ द मोर कैपेबल हो जाता है इंडिविजुअल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इन मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिविटी चेंज, ऐसा कुछ, एंड कूपिंग, और बहुत स्कोप आ जाता है उसकी लाइफ में उसको. सो इट बिकम्स द पैरामाउंट और वी कैन से अ पोटेंशियल फॉर द growth in an individual. Now phases in the development of the crisis. क्या क्या phases रहते हैं in the development of crisis? In this crisis situation जब develop होती है तो different क्या इसको बोलते हैं phases आ जाते हैं. कैप्लान नहीं दिए in 1964 में different specific phases, लगभग 4 phases through which an individual progresses in response to any precipitating stressor. ठीक है, and फर्स्ट फेज़ जो होता है दैट इज़ द वेरी फर्स्ट फेज़ जो एक इंडिविजुअल में होता है, इसमें इंडिविजुअल इज़ एक्सपोज्ड टू एनी प्रेसिपिटेटिंग स्ट्रेसर. पहले फेज़ में वो एक्सपोज हो जाता है कि उसको वो कोई स्ट्रेसर सामने आ जाता है. उसमें क्या हो जाता है, उसको एंजाइटी इंक्रीज़ होती है, और वो क्या करता है जो प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होते हैं उसको प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स वो उनको लगा देता है कि वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करेगा बाय प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो उसको आती होंगी. नेक्स्ट इज सेकेंड फेज
जब सेकेंड फेज में व्हेन प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डू नॉट रिवील द स्ट्रेस एंग्जाइटी फर्दर इंक्रीजेस, पहली वाली में वो सिर्फ ये एक्सपोज होता है स्ट्रेसर से और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट करता है जो उसने ऑलरेडी की होती है कभी। लेकिन अगर वो प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स फर्दर ये स्ट्रेस को रिलीव नहीं करती है तो एंग्जाइटी फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल ही में फील ग्रेट डील ऑफ डिस्कम्फर्ट एट दैट पॉइंट। कोपिंग टेक्निक्स जो उसने पास्ट में मतलब यूज़ किए होते हैं कोपिंग टेक्निक्स वो अटेम्प्ट करता है, ठीक है ना। एंड ओनली उसकी वजह से हेल्पलेसनेस अगर उसको फील होती है, अगर वो सक्सेसफुल वो कोपिंग टेक्निक सक्सेसफुल नहीं होगी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और डिसऑर्गेनाइजेशन उसकी लाइफ में आ जाता है। नेक्स्ट फेज इज़ द थर्ड फेज। इसमें क्या होता है, ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर कॉल्ड ऑन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिलीव द कम्फर्ट। बोथ जो भी रिसोर्सेज इंडिविजुअल के पास होते हैं, इंटरनल अपने तक जो होता है या एक्सटर्नल किसी और से मशवरा लेगा या किसी और से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, वो सारा रिजॉल्व करने में लग जाता है ताकि उसका ये जो डिस्कम्फर्ट है वो रिलीव हो जाए, ठीक है। और इंडिविजुअल ही मे ट्राई टू व्यू द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। अब अगर क्योंकि ऊपर वाली टेक्निक्स कोपिंग भी फेल हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी फेल हो गई, तो वो इस प्रॉब्लम को अब दूसरे अंदाज से देखना स्टार्ट करता है। ही ओवरलुक्स सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ इट और नए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़ करता है। और अगर इफेक्चुअल हुए रेजोल्यूशन फिर इसी फेज़ में आ जाता है, तीसरे फेज़ में। अगर वो नए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यूज़फुल हुए, काम कर गए, तो फिर रेजोल्यूशन इसी फेज़ में आ जाता है। एंड विद द इंडिविजुअल जिसकी वजह से वो रिटर्न करता है टू द हायर और लोअर प्रीवियस लेवल ऑफ फंक्शनिंग, जो उसकी ऑलरेडी नॉर्मल फंक्शनिंग है उधर जाने में उसको वो चीज़ें हेल्प करती है। द नेक्स्ट लास्ट फेज, द फोर्थ फेज, अगर रेजोल्यूशन अब नहीं हुआ, इफ़ रेजोल्यूशन डज नॉट ऑकर इन द प्रीवियस फेजेस, फिर कैप्लान ने बोला कि टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है बियॉन्ड द थ्रेश होल्ड, और जितना बर्डन ये इंडिविजुअल कर सकता है, अपने ऊपर ले सकता है, उससे ज़्यादा ही टेंशन बढ़ता है उसके थ्रेश होल्ड पे। एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम बर्डन इंक्रीजेस और मेजर डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है एक इंडिविजुअल में, ठीक है ना, उसमें। और एंग्जाइटी पैनिक लेवल्स तक पहुंचती है, कॉग्निटिव फंक्शंस इधर डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, मूड लायबल हो जाता है, बिहेवियर में आपको उसको डिफरेंट चेंजेस लगेंगे, इनफैक्ट साइकोटिक थिंकिंग भी लगेगी आपको इस फोर्थ फेज में। तो ये सारे फेजेस दे आर व्हाट इज़ कॉल्ड एज दे हैव द रिलेशनशिप विथ वन अनदर। एंड एक बैलेंसिंग फैक्टर भी होता है एक इंडिविजुअल में जो इन फेजेस को बैलेंस करता है, और डिफरेंट बैलेंसिंग फैक्टर्स डिफरेंटली इस इंडिविजुअल को इन प्रेसिपिटेटिंग स्ट्रेसर्स से हेल्प करता है लड़ने के लिए। That was all about today's topic. I'll come with the part second of this video, next part of this video soon inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.